جس طرح سنتاس کا معاہدہ ہے، اس کے بعد آبی دہشت گردی جو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ جو رائٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں ایک اور تباہ کن جنگ کا خدشہ ہے، کیونکہ چھوٹی سی چنگاری بھی ایک تباہ کن رزلٹ دے سکتی ہے۔ بھارت ایک بار پھر آبی جارحیت کا کھلا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لین جی، اب یوں لگ رہا ہے کہ جو پہلے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاک بھارت اگلی بڑی جنگ پانی پر ہوگی، اب اس کا میدان سج چکا ہے۔ مرنا تیرے کو ڈر نہیں لگتا؟ آج کے دن تک اگر 16 دسمبر 1971 کے بعد کوئی دن افسوسناک تھا تو وہ 10 مئی 2025 کا دن تھا، جب پاکستان کی 11 مختلف ایئر بیسز کو پریسیجن کے ساتھ اٹیک کیا گیا، ہاتھ باندھ کر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پاکستان کسی ایک کا بھی جواب میزائل حملے کے ذریعے نہیں دے سکا۔ پاکستان کا پانی انہوں نے بند کر دیا ہے، کیا ہم نے ان کی سانس بند کر دی ہے؟ بی جے پی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر چرچا کیا گیا کہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی جب سے معطل کر رکھا ہے، اب وہ یہ بتائیں گے کہ وہ یہاں سے جو چاہیں گے وہ بنائیں گے اور جس طرح چاہیں اس کو لے کر چلیں گے۔ بھارت نے پاکستان کی لائف لائن 25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کے لیے ایک انتہائی خطرناک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ نمبر 2، یہ واٹر کے ایشو کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھا ہے پہلے سے۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ کشمیر کا ایشو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ امریکہ ہی ہمیشہ اس کو ویٹو کرتا رہے، اور پلس ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں موقع دے۔ میں ایک دفعہ سن رہا تھا ہلری کلنٹن نے یہ کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اگر اس کو آپ سپریس نہ کرے رکھیں، چھوڑتے جائیں تو یہ راکٹ کی طرح اوپر جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج پاکستان کی بہت تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ بھٹیارا ہے نمازی تو ضرور ہے دغا بازی۔ یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، یہ بادبانی کشتی ہیں۔ آج آپ کے لیے بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، کل آپ کو بڑی بڑی، بس وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو سنائیں گے۔ پاگل جرنیلوں نے پاکستان کو توڑنے کی ٹھان لی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے جو ہم نے وعدے اور ڈیلز کر لی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کی جو ریالٹیز ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ جنگ کا تبل بھی بچ چکا ہے، کیونکہ غیر قانونی ڈیمز جو بھارت بنا رہا ہے، اگر وہ نہیں باز آتا تو ان پر پاکستان ایئر فورس کی ایئر سٹرائکس، یعنی ان ڈیمز کو تباہ کرنے کے حوالے سے اہم ترین بیان سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، یہ پھنس گیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے دوران ایسے منصوبوں سے انڈیا کس طرح فائدہ اٹھائے گا، and how will this negatively impact Pakistan and potentially put this entire region at the brink of war? پیاری سمجھ گئی۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں پاکستانیوں کی ایسے جل پڑی ہے، یہ دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ویڈیو دیکھیے اور لاسٹ تک دیکھ کے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے، ایسی ہی ویڈیو ہم لے کر آتے رہیں گے۔ دھنیہ واد۔ دیکھیں، اس میں یہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے نا، اس سے پاکستان کا امیج بیٹر ہوا ہے۔ اگر امیج بیٹر ہوا ہے تو فار شور پاکستان ول بی ان اے پوزیشن کہ ایک تو پریشر انڈیا پہ ڈال سکے، کہ وہ کہہ رہے تھے نا سندور آپریشن جاری رکھیں گے، تو ٹیررزم انڈیا افغانستان سے جاری رکھیں گے۔ نمبر 2، یہ واٹر کے ایشو کو بین الاقوامی سطح پہ پہلے سے، اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ کشمیر کا ایشو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ امریکہ ہی ہمیشہ اس کو ویٹو کرتا رہے، اور ان کو اگر سمجھایا جائے کہ اگر رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اور ان کے ریزولوشن کے مطابق ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے واٹر ایشو ود انڈیا جو انٹرنیشنل لا کی ایک وائلیشن ہے، بائی لیٹرل نہیں ہے، انٹرنیشنل ایکٹ ہے، بیکاز اس کے اندر ورلڈ بینک کی شمولیت بھی ہے، وہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو بہت سا انڈر ڈیٹ ہے، اس کی بہت سی جگہ کے اوپر ری شیڈولنگ ہو سکتی ہے اگر دوسرے کنٹریز کی تھوڑی سمپیتھیٹک سوچ ہو نا۔ اور پلس ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں موقع دے۔ میں ایک دفعہ سن رہا تھا ہلری کلنٹن نے یہ کہا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اگر اس کو آپ سپریس نہ کرے رکھیں، چھوڑتے جائیں تو یہ راکٹ کی طرح اوپر جائے گا۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک قوم ہے، زندہ قوم،
25 करोड़ लोग हैं, उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी है, वो एक उनके अंदर एक कूट कूट के भरी हुई है दलेरी, बहादुरी और विल टू फाइट, जो कि जिसकी बुनियाद उनके नजर ऊपर है। पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत है, अगर किसी एक चीज के ऊपर खड़ी हुई है तो वो है पानी। अब सवाल यह है कि अगर चनाब का फ्लो रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास आ जाए तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी तो जो है वो पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं। इंडिया अभी कर क्या रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। टेक्निकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनकी स्टडी करके मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया जो है वो आज इंडिया सिर्फ एक डैम नहीं बना रहा है, आज इंडिया एक पूरे का पूरा नेटवर्क बना रहा है, जिसमें सलाल, मैं आपको ये कंफर्म्ड रिसर्च के बाद ये किस तरह इंडिया क्या काम कर रहा है। इंडिया सलाल, ठीक है जी, दुलहस्ती, बागलेहार, कीरू, रतले, कवर, सवालकोटी और सबसे अहम बरसर, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं, ये एक चेन है, एक कैस्केड सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट नेटवर्क है। यानी पानी पहले एक जखीरे में, रिजर्वायर में आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा और फिर पाकिस्तान में आएगा। और हर स्टेज पे इंडिया के पास इस पानी का ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा। और पाकिस्तान के लोग अहमद शरीफ चौधरी बढ़ के मारने के अलावा कोई और करण जोगा कुछ है ही नहीं। ये इनके हालात हैं। असल खतरा क्या है इसको भी देख लीजिए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इंडिया कल सुबह उठकर चनाब को पूरा बंद कर देगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के लिए भी, ठीक है। लेकिन असल खतरा टाइमिंग्स का है। एग्रीकल्चर टाइमिंग्स के ऊपर चलती है। वक्त पे फसल को पानी ना लगे तो फसल तबाह हो जाती है। जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पानी लग रहा है, पंजाब की हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर, और पंजाब की फसलें अगर जो है वो उनके जिम्मेदारों को फसलें नहीं देंगी और तबाह हो जाएंगी तो जाहिर बात है, और उनकी नहरों में टाइम के ऊपर पानी नहीं आएगा तो नहरें नहीं चलेंगी। किसान जो है वो टाइमिंग के ऊपर बीज नहीं लगाएंगे। और अगर अपस्ट्रीम स्टेट टाइमिंग कंट्रोल कर ले, जो कि इंडिया यहां पे टाइमिंग कंट्रोल कर ले, जो मैंने आपको बताया है कि पूरा सिस्टम बना रहे हैं इन डैम्स का, वाटर रिजर्वायर का, सलाल, दुलहस्ती, बगलेहार, पकादुल, कीरू, रतले, कवार, सियालकोटी और बरसर के अंदर, तो वो पानी रोक लेंगे। उनके पास ये कंट्रोल आ जाएगा। अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। जब वहां पे सैलाब आएगा तो छोड़ दें। जब भारत ने हमला किया मई 2025 में, पिछले साल, पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ मकामात, बल्कि 9 नहीं कहना चाहिए, 4 कश्मीर में थे, 5 कश्मीर में थे, 4 मकामात पर मेन लैंड पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए, मिसाइल के निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे जो हमला हुआ मिसाइलों का, पाकिस्तान भरपूर कोशिश के बावजूद उसका जवाब नहीं दे सका। यहां तक हुआ कि भारतीय ड्रोन पूरे पाकिस्तान के फजाओं में घुस आए, खुसूसन पंजाब के तमाम इलाकों पर गर्दिश किया। तकरीबन 100 के करीब लोग पाकिस्तानी इन ड्रोन्स और इनके लगे मिसाइलों से मारे गए। पाकिस्तान की इंतहाई सेंसिटिव तनसीबात के मुकामात तक ये वाले ड्रोन पहुंचे। और जब पाकिस्तान ने कहीं 10 मई को जाकर जवाब देने की कोशिश की तो वो जवाब जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें नाकाम बनाया। लेकिन भारत ने इस कोशिश करने का जवाब भी पाकिस्तान की 6 मुख्तलिफ एयर बेसिस पे बराह रास्त हमले करके दिया। ये हमले रिपोर्ट ही नहीं होने थे अगर इनमें से एक मेन हमला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाकया नूर खान एयर बेस पे ना होता और पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर गूंज ना उठता, तो इस बात को ही छुपा लिया जाता और इंडिया का झूठा दावा करार दिया जाता। इसके बाद फौरी तौर पर यह बात समझ में आ गई कि हम थोड़ी देर पहले मिसाइल फायर करने की कोशिश कर चुके हैं, हम मिसाइल नहीं फायर कर पा रहे, नहीं हिट कर पा रहे टारगेट्स को मेन लैंड इंडिया में। तो उसके फौरन बाद जो है वो दूसरी तरफ कोशिशें शुरू हुई जंग बंदी की। उसकी डिटेल्स हम शेयर करते रहे हैं, बारहा करते रहे हैं। भारत जो है वो खबरें बहरहाल चलाई गई कि हम भारत में हमले कर रहे हैं और तकरीबन आधा भारत जो है तबाह कर दिया। साथियों ने ट्वीट्स भी किए और बहुत कुछ किया। लेकिन जब भारत इस चीज़ पे एग्री हुआ कि पाकिस्तान का DGMO उनको कॉल करे और कॉल की गई और जब जंग बंदी पे इत्तफाक हुआ
तकरीबन 3:15 बजे के 5 बजे से जंग बंदी होगी, तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम था, 1.25 घंटे का टाइम था, इसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के मजीद 5 एयर बेसेस पे प्रिसीजन के साथ अटैक्स किए, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान शहीद भी हुए, अफसरान शहीद भी हुए। बहुत ही अलमनाक दिन था, बहुत ही अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख का। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज के दिन तक अगर 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था, जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान किसी एक का भी जवाब मिसाइल हमले के जरिए नहीं दे सका। ये वो सूरत हाल थी। लेकिन और भारत का ये एक्ट ऑफ एग्रेशन था जो भी उन्होंने 7 मई को ये शुरू किया। पहले वो धमकियां देते चले आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि ये एकतरफा तौर पे ऐलान किया कि हमने जो है वो 23 अप्रैल को कहा कि हमने सिंतास इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबाइंस कर दिया और पता नहीं क्या क्या। और उसके जवाब में ये कहा गया जो मैंने आपको सुनवाया कि जी आप हमारा पानी रोकेंगे, हम आपकी सांस रोक देंगे। अब हुआ ये है और आप देख रहे होंगे कि भारत में बाकायदा पब्लिकली इस चीज को टेंडर किया गया है। एक मंसूबा ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये मंसूबा ये है कि जो भारत के अंदर दरियाए चनाब जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आता है और जिसके ऊपर यकीनी तौर पे जो पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, वहां पे कोई भी आबी मंसूबा बनाने पे पाकिस्तान को भी कोई इतराज नहीं और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भी इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वहां पे आप कोई भी आबी मंसूबा बना सकते हैं, बिजली की पैदावारी का मंसूबा बना सकते हैं, लेकिन जो पानी उससे निकलेगा, एग्जिट होगा, वो उसी दरिया में ही वापस आना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि भारत एक टनल खोद रहा है जो तकरीबन 8.7 किलोमीटर लंबी, यानी कि तकरीबन 5 किलोमीटर मील से ज्यादा लंबी एक टनल है जो कि रूट करेगी दरियाए चनाब के झीलों के पानी को टूवर्ड्स दरियाए ब्यास जो कि इंडिया के अंदर ही रहता है। यह काम कर रहा है इंडिया, जो कि वाज़े तौर पे खिलाफ वर्जी है इंडस वाटर ट्रीटी की। ये जर्नेल जो कि शीशों के महल्लात में बैठे हैं, इनको नहीं पता कि पानी की कमी से मुराद क्या है। इनको नहीं पता कि पानी की कमी से किसान को या पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान होता है। इनको नहीं पता कि जब पानी जिसका फ्लो होना होता है और वो डाउन स्ट्रीम में आखिर में सिंध तक जाता है और एक खास तादाद में समुंदर में गिरना होता है, जब वो नहीं गिरता तो वहां के लोगों को क्या नुकसान होता है। इन जर्नेलों को सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर लूट मार करें, असासे जो हैं वो हम यूरोप, अमेरिका, गल्फ में बनाएं और पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है उन पे कब्जे करें और वहां से भी काश्तकारी के जरिए जो हम कोई पैसे बना सकते हैं वो बनाएं। आम लोगों को, लोकल लोगों को, इंडिजिनस लोगों को कभी भी उनका राइट नहीं देने दिया जाता। दोस्तों, पाकिस्तान ने बोला था एक बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम इनकी सांस रोक देंगे। लो, भारत ने पानी रोक दी। पानी हर जगह, हर एक नदी पे डैम बना रहा है भारत, और कुछ नदी का जिसमें डैम बना हुआ है उसको अपग्रेड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भीगी बिल्ली बनकर छुप गया है। अब ये क्या धमकी देते हैं कि मिसाइल मार देंगे। हम तो वही वेट कर रहे हैं कि मिसाइल मारो आप लोग, हम वही वेट कर रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।